So, greetings of the day, guys. Today we have with us Vaibhav Vyas, a second year student pursuing BCom LLB from Gujarat National Law University. And Vaibhav has interned with the leading political consultancy firm for the Assam elections. He is also a part of the Think India Forum. So, with the reading, the one of the most important thing for CLAT, and among reading other thing, the most important thing is you are reading the two newspapers. So Vaibhav will be discussing the strategy and the tricks for reading newspaper and how to deal with the game of words and how to solve the English passages efficiently. So the floor is yours, Vaibhav. You can start. Thank you, Aran, for this kind introduction. As you have introduced, Just a so bit, we little bit louder. can. Thank you for this kind introduction, Aran. Now, as you have introduced, so we can start now with the presentation. Yeah, yeah, sure. So the topic for today is the way to deal with game of words, tricks for reading newspaper and English passages. तो सबसे पहले तो अभी जब से क्लैट का नया पैटर्न आया है, नया पैटर्न चेंज हुआ है, तब से रीडिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि तीन सेक्शन सीधे सीधे जैसे कि लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों रीडिंग पे बेस्ड हैं। तो मोर देन 70% ऑफ पेपर अब रीडिंग पे बेस्ड हो गया है। तो उतना ही इम्पोर्टेंस हमें जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो रीडिंग पे देना देना पड़ेगा टू परफॉर्म बेटर। तो रीडिंग का तो हम सभी को पता ही है इम्पोर्टेंस। तो एक बार हम लोग एक मैंने पैसेज लेके मतलब प्रिपेयर किया है। तो अगर इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड, तो वी कैन स्टार्ट विद अ पैसेज टू सॉल्व। लाइक आई हैव दिस पैसेज एंड आई विल सेट अ टाइमर टू गेट एन आइडिया वेयर वी स्टैंड टुडे। सो ये पैसेज है। तो अगर सभी साथ में शुरू कर देंगे, अगर सब रेडी हो, तो फिर मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब पैसेज को तो सभी साथ में सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम इसको एनालाइज करेंगे कैसे आइडियल वे था इसको करने का। सो कैन वी शुड वी स्टार्ट इट? Yeah, just present it on the screen. हाँ। सो आई विल सेट अ टाइमर, वी विल स्टार्ट टुगेदर, ऑल ऑफ अस। इट इज अ स्मॉल पैसेज, सो शुड वी स्टार्ट नाउ? Yeah, you just share the passage on the screen. दिस इज पैसेज, आई हैव शेयर्ड इट। अच्छा, ओ 1 मिनट। आई थिंक ओके। Is the passage visible now? Yeah, it is visible. Okay. Can start it. Okay, so let's start it. Guys, start reading the passage and wait for the questions. Okay. Take your own time, everyone.
Is everyone done with the passage? Yeah, they are done with the passage. You can show them the question. So this is the first question. Yeah. Uh, so this is the first question. So take the answer according to your choice. What you feel the correct answer. Then we will discuss the correct answers. This is the first question. Aryan, they can see na Yeah, questions. yeah, they can see it. They have started to put the answer also. अच्छा, अच्छा, okay. Okay, I can move to second now. Yeah, yeah, sure. Question. Just make sure, guys, that when you write the answer in the chat box, you write along with the number, question number. For example, 1B or 2D in such manner, so that it will be easier for us to recognize. Okay, Vaibhav, you can move to the next question. Yeah. Aryan, tell me to move to next question, huh? Yeah, yeah, sure. Okay, just a minute. Yeah, yeah, yeah. You can move to the photo.
Okay, Vaibhav, they're done with all the four questions. ओके, 1 मिनट। हाँ, सो अच्छा मैं वापस शेयर करता हूँ। ओके, तो एवरीवन कैन सी ना स्क्रीन ना? Yeah, yeah, we can see. हाँ, सो कैन एनीबडी अनम्यूट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट एंड कोई करना चाहेगा? तो चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, तो पैसेज इस बारे में था कि अबाउट द फेडरल लैंड दैट तो कांग्रेस की अब जो वो है थिंकिंग है कि जो फेडरल लैंड है उसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज, तो ऑप्शन ए है सजेस्ट दैट द नेशनल फॉरेस्ट सिस्टम इज प्लेग्ड बाय मैनी प्रॉब्लम। ये ए किसका आंसर था? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? अरहान, आर्यन, हेलो आर्यन। Yeah, yeah, just, yeah. हाँ, सो So most हाउ of कैन them आई have इन द चैट marked बॉक्स? B. मोस्ट पीपल हैव मार्क्ड। B for Bombay. ओके ओके, हाँ सो, हाँ सो बी सही है, क्योंकि जो सजेशन नेशनल फॉरेस्ट सिस्टम ये तो बिल्कुल भी कहना नहीं चाह रहा है कि सजेशन तो है, लेकिन ये मेन पॉइंट प्राइमरी पर्पस नहीं है वहाँ पे, है ना पैसेज का। ये बी ऑप्शन कह रहा है कि आर्ग्यू दैट इट इज नेसेसरी टू रिस्ट्रक्चर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फेडरल लैंड। हाँ, सो दिस इज एग्जैक्टली द व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे तो यार सबका सही है ना मतलब। तो ये तो मोस्ट इजी क्वेश्चन था इस पैसेज का, तो चलो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशंस ऑथराइज्ड टू मैनेज द नेशनल फॉरेस्ट शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पॉइंट कहता है एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स टू फॉर मेकिंग ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस फाइनेंशियल वेलबींग। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है ऑथर, तो हम इससे एग्री कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अर्निंग एटलीस्ट अ मिनिमम रिटर्न ऑन द कॉर्पोरेशन रिसोर्सेज एंड एसेट। ये भी ठीक है, ये यही कहीं फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, यहाँ तक है ये सेकंड पैराग्राफ में। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। अचीविंग अ मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन, अचीविंग अ मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑन द कॉर्पोरेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है कि मैक्सिमम शब्द तो यूज़ भी नहीं हुआ है, ना ही कहीं ऐसा इंटेंशन है ऑथर का ये कहने का। तो ये थर्ड वाला पॉइंट इससे गलत हो गया। तो फर्स्ट कह रहा है, सेकंड कह रहा है, थर्ड नहीं कह रहा, तो ये ऑप्शन ऑप्शन डी है। तो कितने लोगों ने ऑप्शन डी पे टिक किया था? चैट बॉक्स पे लिख रहा था। काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। प्रियवदा, परमप्रीत, सिंधुजा, सौम्या, चलो भाई सही है। ओह गुड यार, सभी मतलब सही जा रहा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे, द ऑथर सजेस्ट दैट द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ फेडरल फॉरेस्ट लैंड हैव बीन हैंडिकैप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके कारण थोड़ा हैंडीकैप हुआ है यहाँ पे? ऑप्शन ए कहता है द पब्लिक एक्सपेक्टेशन दैट फेडरल फॉरेस्ट लैंड विल रिमेन अनडेवलप्ड। ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये तो कहीं नहीं कह रहा ऑथर कि भाई पब्लिक पब्लिक एक्सपेक्टेशन के बारे में बात ही नहीं हुई है। फिर दूसरा पॉइंट है बी की द फेलियर ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फेडरल फॉरेस्ट लैंड। ये भी कहीं नहीं लिखा है पैसेज में। तीसरा पॉइंट है द इनएबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंपेयर विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस फॉर द सर्विसेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि भाई कि एक हम अगर इसको प्राइवेट फेडरल गवर्नमेंट की अगर प्रॉपर्टी को हम या फॉरेस्ट को हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं तो उससे थोड़ा एडवांटेज रहेगा। तो ये पॉइंट है, सच सही है, तो ये हो सकता है। चौथा पॉइंट है द अनविलिंगनेस ऑफ कांग्रेस टू पास लॉज टू प्रोटेक्ट फेडरल फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम प्राइवेट डेवलपर्स। ऐसा तो कहीं क्लियरली कह नहीं रहा है ऑथर, तो ये गलत हो गया। द डिफिकल्टी ऑफ परसुएटिंग सिटीजन्स टू इन्वेस्ट कैपिटल इन गवर्नमेंट रन एंडेवर। द डिफिकल्टी ऑफ परसुएटिंग सिटीजन्स, नहीं सिटीजन्स को परसुएट करने की तो बात हो ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो ऑप्शन सी सही हो गया है। कितने लोगों ने सी मार्क किया था?
थर्ड आर्यन रिप्लाई आ रहा है थर्ड के लिए? या जस्ट गो या। हम्म। थर्ड सी ओ काफ़ी लोगों का था यहाँ पे ना। प्रियवदा उत्सव विश्वास सही है भाई, यहाँ भी ठीक है। तो भाई यहाँ पे सी सही हो गया। ठीक है, जिन लोगों का ये सही हो रहा है ना, मतलब सही है, मतलब ये क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट था कंपेरेटिवली वाला। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। तो पैसेज के बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? तो पहला वाला है, ए प्रपोजल इज मेड एंड देन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आर सेट फॉर। हाँ ये ठीक है, क्योंकि पहले आर्ग्यूमेंट में वो कह रहा है, पहले पैराग्राफ में वो बता रहा है यहाँ पे कि भाई कांग्रेस का जो ये है, तो उस हिसाब से फर्स्ट वाला ठीक हो गया है। वन क्लेम इज एवेल्यूटेड एंड देन रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ अनदर क्लेम। तो ऐसे बहुत सारे क्लेम तो उसने बनाए नहीं है, एक क्लेम है और उसके ऊपर प्रमाइस डेवलप कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। A point of view is stated and then evidence for and against it evaluated. So a point of view is stated and then evidence for and against it is evaluated. अगेंस्ट में कहीं इसने कुछ दिया नहीं है किसी भी आर्ग्यूमेंट के, तो ये भी गलत हो गया। एंड देन वेरियस सॉल्यूशन आर, the problem is outlined and then various solutions are discussed. वेरियस सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन डिस्कस नहीं हुए यहाँ पे, डी भी गलत है। ये डिबेट विबेट तो कहीं हुआ नहीं है, तो भाई इसके लिए तो ए सही, एकदम सीधा सीधा एकदम है, ये तो इजी था। तो ठीक है भाई, तो सही है भाई। जिन लोगों का ऑप्शन पहले का आंसर बी था, और दूसरे में जिसका आंसर था डी, वो सही है। थर्ड का जिसमें था सी, वो भी सही है, और फोर्थ का ए। तो ये करेक्ट आंसर से भाई, जिन लोगों के सही आए बहुत ही बढ़िया। ये काफ़ी काफ़ी ठीक चीज़ है। तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोगों के सही थे। ठीक है। अरे यार, तो ठीक है। सो नेक्स्ट, तो इसलिए रीडिंग का पट, अब हम न्यूज़पेपर का देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर किस तरीके से रीड करना है। तो आई एम शेयरिंग अ न्यूज़पेपर, द हिंदू टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस का आज का जो एडिशन है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कभी भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो फ्रंट पेज है, मतलब इसमें देखो, फ्रंट पेज है इसके ना, मेरे ख्याल में पूरे आर्टिकल पढ़ना चाहिए। मतलब 80% इसका जो कंटेंट रहता है, जो बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं होता है, वो वाला छोड़ के सारा, जैसे कि इसमें है इंडिया पुल्स आउट ऑफ मज़ार टेल्स नेशनलिस्ट टू लीव अफगानिस्तान, नेशनल्स टू लीव अफगानिस्तान। तो ये वाले इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या पॉइंट है, मतलब यहाँ पे अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान इशू को हम पूरा कवर कर सकते हैं। यहाँ से हेडिंग से हमें जो मेन टॉपिक है वो उठाना है, और इसके बाद इसके ऊपर डीपली रिसर्च करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ से हेडिंग्स उठाना है मेजरली हमें। और रीडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, काफ़ी न्यूज़पेपर्स का तो डेली का अच्छा कंटेंट आता है, इंटरेस्टिंग रहता है। तो ये आर्टिकल पढ़ना है हमें, और इसके ऊपर रिसर्च भी करनी है साथ साथ। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे वायबिलिटी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, गवर्नमेंट लाइकली टू टू पुश फॉर फ्लोर प्राइस। तो भाई ये जो इसमें तो एक्सप्लेन भी किया गया है इसको, तो ये एक्सप्लेन वाले पेज पे जाके इसको एक्सटेंसिवली पढ़ सकते हो आप लोग जाके। तो ये वाला भी प्रेफर्ड है भाई, पढ़ना है इसको। पेगासस केस, ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इस बार आ सकता है क्लाइट में नेक्स्ट ईयर। तो ये मतलब फ्रंट पेज की ये भी कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम तो करना ही होता है, पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये लोकसभा डिबेट और ये सब तो करना ही होता है। क्या नहीं करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। माइल्ड कोविड, ये सब ये नहीं करना है ना। इन द वर्क इंडिया मेड अ ड्रग क्योर माइल्ड कोविड। ठीक है, थोड़ा एक बार देख लो इसको, लेकिन बहुत इसको मतलब इसका नोट फुट बनाना जरूरी नहीं, एक बार रीडिंग मार लेना। ये हेट स्पीड बीजेपी कांग्रेस से आगे ये सब नहीं करना होता है। ये टाइम किलर्स होते हैं सब, इसमें टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ठीक है। फर्स्ट फ्रंट पेज हो गया, और ये अपना ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, ये सब पढ़ सकते हो आप। तो ये पढ़ना होता है। ये द सिटी वाला पेज होता है, इसको नहीं पढ़ना है, ये इसको स्किप कर सकते हैं, पेज बिल्कुल काम का नहीं होता है ये। के अलावा ये द सिटी पेज, पेज नंबर 6, ये भी कोई काम का नहीं है। इन द पार्लियामेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से इशू आते हैं, इसमें से लीगल के पैसेज बन जाते हैं कई बार। तो ये वाला पेज करना होता है, ये पूरा पेज। ज़्यादातर यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस हो गया है ना, पीएम मोदी 6 नेम्स ऑफ बीजेपी, ये सब नहीं, ये कोई काम के नहीं है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस वगैरह वाले इश्यूज है ना छोटे मोटे, ये वाला नहीं करना होता है। ये पंजाब सीएम नीट से भी नहीं है। ठीक है, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया, जिसको देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है डेली के पेपर में। अब ये एकदम स्पेसिफिक नहीं है, थोड़ा आप कॉमन सेंस इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये RSS ये सब बेकार है। पीएम लॉन्चेस वाला सेकंड फेज, फेस माइग्रेशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये भी कोई काम के नहीं रहता है।
ठीक है, ये एक बार रीडिंग के लिए बढ़िया है। ये सब जो टॉप कोड गिव वेकअप कॉल टू लॉ मेकर्स, तो लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो तो करना ही है ना? ये श्रीनगर, राहुल गांधी, ये सब कोई काम करना है। ठीक है, ये सीधा स्किप कर सकते हैं आप लोग इसको। ये कोविड केसेस, डेली के कोविड अपडेट्स, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको रीड कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। ये करंट अफेयर्स के पर्पज से इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो रीडिंग, क्योंकि रीडिंग तो बैकबोन है क्रेडिट का हिसाब से। इसके लिए जहाँ भी जितना रीड करने को मिले उतना रीड कर लो एक्सटेंसिवली। तो ये भी कोई काम का नहीं एक्सप्रेस नेटवर्क। ठीक है, सबसे मेन तो इसमें पेपर में होता है, ये हेडिंग उठाना है आपको, कोई भी टॉपिक होता है उसकी, और उस हेडिंग के ऊपर एक्सटेंसिवली आपको रिसर्च करना है। आपके सोर्सेस हो सकते हैं अलग अलग, मैं भी बताता हूँ उसके बारे में। प्रोडक्शन और व्हाई नॉट, ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो रीडिंग भी अच्छी होती है इनमें, और अच्छे वोकेबलरी के वर्ड्स भी मिल जाते हैं, तो न्यूज़पेपर में ये पढ़ना है। एडिटोरियल पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट होता है एडिटोरियल। यहाँ से सीधे के सीधे पैसे आ जाते हैं कई बार, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। आइडियाज पेज, आइडियाज पेज पढ़ना होता है, ये काफ़ी सही रहता है। ये ग्लोबल न्यूज़ है, यहाँ से जो न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं इनको उठा के आप अपना कोई भी वेबसाइट पे जाइए, और इसके ऊपर एक आर्टिकल रीड कर लीजिए, एक से अच्छा बड़ा आर्टिकल हो, एक्सटेंसिव सा। ठीक है, इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी के लिए मैं आपको भी एक सोर्स बताऊंगा, वहाँ से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इकोनॉमी वैसे क्लेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी बस ये सब कोई काम का नहीं। स्पोर्ट्स न्यूज़, क्रिकेट विकेट का ज़्यादा आता नहीं है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक है इसके ऊपर ही कुछ कुछ इवेंट आ सकते हैं, वो ही करना है मतलब। और उसके लिए स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए भी एक अलग वो है, स्पोर्ट्स न्यूज़ की हेडिंग। ये सब जो मेन न्यूज़ होता है ना, जैसे कि बहुत वंस इन अ ईयर इवेंट होती है, जैसे क्रिकेट के तो मैचेस बहुत सारे होते रहते हैं, तो ये T20 वर्ल्ड कप कोई काम का नहीं है, ये रहने दीजिए। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसके अलावा आप टॉपिक उठाते हैं, और एक अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊं करंट अफेयर्स के लिए, ये दृष्टि आईएएस है। दृष्टि आईएएस में ये जो होता है आपका करंट अफेयर सेक्शन होता है इसका, यहाँ पे डेली के आर्टिकल्स आते हैं। तो यानी कि एक तो ये एडिटोरियल्स होते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रीड करना बहुत बहुत फ़ायदे का होता है, बहुत इसमें एडवांटेज मिलता है। तो मैं प्रेफर करूँगा, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये आर्टिकल्स रीड करने के लिए। यहाँ पे जो एडिटोरियल्स होते हैं, और यहाँ पे डेली का करंट अफेयर्स आता है, तो ये लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से उठा के, अगर मान लीजिए आपको लगता है कुछ आप मिस आउट कर रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ये। और इन लोगों का मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी होता है, तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। बॉलीवुड तम्बाकू सर्वे, ये सब नहीं, इसमें भी मतलब ये वुमेन इन कॉम्बैट रोल इन आईटीबीपी, ये सब जो इश्यूज है इसमें सारे अच्छे रहते हैं इश्यूज। तो दृष्टि आईएएस में आपको बता दिया सोर्स, ये सोर्स काफ़ी अच्छा है। और ये यहाँ पे से जो आर्टिकल रहते हैं वो रीडिंग के लिए, जब आप फॉर द सेक ऑफ रीडिंग के लिए बैठे हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं। इनमें से सीधे आर्टिकल्स आ जाते हैं कई बार क्लच में, तो खासकर लीगल सेक्शन में, तो ये करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं। अभी मैं पीडीएफ, सो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, तो आप लोग न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस समझिएगा। न्यूज़पेपर मिस नहीं कर सकते आप लोग, कोई भी नहीं मिस कर सकता वर्ड, मतलब इसको मिस करना। तो सबसे बैकबोन तो रीडिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंस है ही। तो अब अब आपको मतलब जितना हो सके रीडिंग पे फोकस करना है। और अ, एक कोट कहा जाता है इसके लिए, रीडिंग के लिए, कि द मोर यू रीड द बेटर यू रीड, यानी कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैट के दिन एज मिलने वाला है। क्योंकि यही है 70% ऑफ पेपर, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतने कम टाइम में आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, और उतना अच्छा कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। तो दो डबल साइडेड एडवांटेज है इसके लिए। आपने देखा होगा इस बार का जो क्लैट का टॉपर था, उसने 10 मिनट पहले पेपर खत्म करके बैठ गया। तो ये ज़्यादा रीडिंग करने से होता है, स्पीड भी अच्छी होती है, कॉम्प्रीहेंशन भी ठीक होता है। तो इसके इसके लिए मैं आपको बोलूँगा जितना हो पाए उतना पढ़ो। मैं आपको कुछ आप नोट डाउन कर सकते हैं। नॉन फिक्शन बुक के बारे में बता देता हूँ, मतलब आपको इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं फिक्शन बुक पढ़ना चाहिए, नॉन फिक्शन बुक पढ़ना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि जो आपको ठीक लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है फिक्शन पढ़ो। टू बिगन विथ बोला जाता है स्टूडेंट्स को जिनको ज़्यादा ज़्यादा मतलब बहुत बचपन से रीडिंग की हैबिट नहीं है, जिनको रीडिंग पसंद नहीं है, उनको हैरी पॉटर सीरीज़ के साथ शुरू करने को कहा जाता है, कि वो इंटरेस्टिंग होती है और नॉन फिक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग माना जाता है। तो अगर आपको आदत नहीं है रीडिंग की, या फिर तो फिर आप नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हो। मैं आपको कुछ कुछ बुक्स के नाम बता देता हूँ नॉन फिक्शन में। एक तो है अपना बायो
बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हो आप, विवेकानंद जी की बायोग्राफी है वो पढ़ सकते हैं, है ना? और एक बुक है दो गो आस्क एलाइज़, गो आस्क एलाइज़, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ नाम। वो आस्क एलाइस नाम की बुक है और दूसरी बुक है ग्रोइंग अप, बेकर रसेल की बुक है। ये दोनों बुक अगर आपको नॉन फिक्शन में इंटरेस्ट हो तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा फिक्शन के लिए अ, शिवा ट्रायोलॉजी बुक है अमीश त्रिपाठी की। ये मैं बिल्कुल बोलूँगा बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी थी अपने क्लैट प्रेप के टाइम पे। तो काफ़ी रीडिंग में हेल्प करेंगे, जितना ज़्यादा जो रीड करने को मिले सब रीडिंग कर लो, मिस आउट नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। तो शिवा ट्रायोलॉजी एक बुक है, द काइट रनर है, हुसैनी खालिद की बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की बुक है, और द नेम से झुम्पा लहरी की बुक है, और सेपियंस नोआ हरारी की। ये 5 बुक मैं रिकमेंड करूँगा टू बिगिन विद, जिससे आप मतलब एक अच्छा रीडिंग का बेस डेवलप कर पाओ। इसके अलावा मिस्ट्री एंड सस्पेंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो द विंसी कोड बुक है, और एंड देन देयर वर नन इस नाम की भी एक बुक है। तो ये सब बुकें मैं आपको शायद शेयर कर दूंगा इसका बाद में ग्रुप पे, इसका नाम सारे। तो ये सब आप प्रेफर कर सकते हो रीडिंग के लिए, ठीक है। अब अपन वोकेबलरी की बात कर लेते हैं कि वोकेबलरी कैसे डेवलप करनी है। तो 3-4 तरीके होते हैं वोकेबलरी करने के। वोकेबलरी क्यों इंपॉर्टेंट है सब तो आप जानते हो कि अगर आप एक तरीके से अगर आपको वोकेबलरी नहीं आती तो आप हैंडीकैप्ड हो, अगर आप वोकेबलरी ना जानने के बाद कोई पैसेज को पढ़ रहे हो, क्योंकि एक वर्ड या 2-4 वर्ड आपने मिस कर दिए पैसेज में, तो आप मतलब एक बेसिक आइडिया मिस कर रहे हो और बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो उस पैसेज में से, जो कि आपको बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग भी करवाएगा, और जो आंसर आप टिक कर रहे हो वो तो गलत होएगा ही होएगा। तो वोकेबलरी आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके बिना पैसेज की अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आप वर्ड पे अटक जाओगे कि यार ये समझ नहीं आ रहा है वर्ड, वही लाइन आप 4-5 बार पढ़ रहे हो, तो टाइम भी जाएगा वहाँ पे आपका, और वो समझ में आएगा नहीं, वो पैसेज का पूरा टाइम वेस्ट होता है। एक साथ अगर आपका 2-4 वर्ड मिस कर दिए पैराग्राफ में, तो एक जो पैसेज का 10-15 मिनट का टाइम होता है वो पूरा जाता है। 10 मिनट का टाइम, खासकर मिनिमम 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो ये सब ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम वोकेबलरी डेवलप करने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वर्ड पावर इमेडिजी नाम की एक बुक होती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ से करें, वर्ड पावर इमेडिजी से। वहाँ पे एक वर्ड लिस्ट दी हुई है पीछे बहुत लंबी, वो वर्ड लिस्ट से कर सकते हैं, और वहाँ पे डेली के चैप्टर्स होते हैं। वो चैप्टर अगर आप डेली डेली एक दो चैप्टर भी करेंगे तो आपका 2 महीने में वो पूरी बुक खत्म हो जाएगी। वो अच्छा खासा बेस डेवलप हो जाता है। वो लोग मतलब रूट से क्लियर करवाते हैं, मतलब वर्ड का जो रूट होता है वहाँ से करवा के, तो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो वर्ड पावर इमीडिएटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। इसके अलावा इंग्लिश इज ईजी नाम की बुक है। तो उस बुक में सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का यूज़ करके दिखाया गया है, जिसके कारण वर्ड को याद करना आसान हो जाता है। यानी कि हाउ टू यूज़ दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। तो इस तरीके से आप आपकी रीडिंग भी हो जाती है, साथ साथ आपका वोकेबलरी डेवलप भी होता है। उसका मीनिंग भी दिया रहता है बगल में कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो वो काफ़ी बढ़िया बुक है। तो वर्ड पावर इमीडिएटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा कभी भी आप कुछ भी पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसमें आपको जो वर्ड होता है उसका वो जैसे ही पढ़ते हैं, एज सुन एज यू रीड एनी वर्ड, वहाँ पे आप उसका मीनिंग लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो, गूगल कर लो, या डिक्शनरी होगी आपके पास, या जो भी आपका सोर्स है, तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं नोट्स बनाते रहिए। आप कोई वर्ड को एनकाउंटर करते हैं, उसका तुरंत वहीं पे मीनिंग लिख लिया, तो आपका डेली का 20-30 वर्ड का वर्ड लिस्ट तैयार हो जाएगा। उसको आप करते चलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर 10 वर्ड भी रोज़ का हो रहा है ना, तो आपके पास अभी 1 साल है लगभग लगभग, ये 10 महीने तो होंगे ही। तो इतने टाइम में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए डेली का 10 वर्ड से, तो काफ़ी अच्छे खासा आपका वोकेबलरी डेवलप हो जाएगी। तो वर्ड लिस्ट का मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपका जो भी आ रहा है कठिन वर्ड आपको लगता है, तो उसको नोट डाउन करिए, मीनिंग लिखिए वहाँ पे, और आप ऐसे करके अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कई बार अगर आपको ये तीसरा पॉइंट है इन्फरिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। कभी ऐसा हो, मान लीजिए तो डी डे के लिए या किसी मौके के लिए हो गया कि आपने कर रहे हैं, तैयारी लगे हैं, लेकिन कभी ऐसा वर्ड आ गया जो आपने कभी देखा नहीं है, तो इसमें तो आप लोग करते भी होंगे ऐसा कि वो कॉन्टेक्स्ट में से उसका क्या मीनिंग हो सकता है, वो इन्फर कर लीजिए आप कि क्या हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाइए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन सेंस से हो जाता है। इसका पार्ट 3 कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो कॉम्प्रिहेंशन हम 3-4 उसमें टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। तो अच्छा, आप सब तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तैयारी, तो आपको पता ही है कि पहले तो हमें एक बार ग्लिम्स कर लेना है कि भाई कितना बड़ा है, कितना टाइम हमें लग सकता है, खासकर क्लैट के पेपर के दिन। आपको ये नोट डाउन करना है कि
ये पैसेज कितना बड़ा है और ये वर्थ इट है कि नहीं करने के लिए। बहुत सारे पैसेज होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 1-2 पैसे छूट भी जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि देखना है कि भाई ये वर्थ इट है कि नहीं इस पैसेज को मेरे लिए करने के लिए। कि अगर मैं इसको करूँगा और ये मेरे को 5 मार्क्स का पैसेज है तो ये कहीं मेरे 15 मिनट तो नहीं खा जाएगा। मुझे उसे 8 मिनट से ज़्यादा देने नहीं है एट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहले प्रीव्यू करना है कि भाई ये करने लायक है नहीं, जो पैसेज करने लायक हो उसे ही उठाओ। क्योंकि एक बार आपने उठाया तो उसमें 8 मिनट 7 मिनट आपके जाने हैं प्रीशियस। तो वो देख लीजिए, प्रीव्यू करना है। फिर एक हम उसमें से इन्फ्रेंस निकालते हैं कि भाई पहला पैसेज पढ़ के हमें क्या समझ में आया, उसका एक बेसिक आइडिया लेते हैं। जैसे पिछले पैसेज में हमने देखा कि पहले ही पैसेज में एक अच्छा खासा आपको आइडिया लग गया था कि किस बारे में है पैसेज, तो इन्फ्रेंस निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर सारे पैराग्राफ को आपने जब इन्फ्रेंस सब सारे पैराग्राफ का अलग अलग इन्फ्रेंस निकालना है आपको, क्या हर पैराग्राफ क्योंकि लिखा जाता है तो एक पर्पज के साथ लिखा जाता है कि इस पैराग्राफ का पॉइंट ये है। तो सारे पैराग्राफ को आपको अलग अलग समझना है। उसके बाद उनके उनको आपस में इंटरलिंक करना है कि इसके बाद ये पैराग्राफ क्यों है, इसके बाद ये पैराग्राफ क्यों है, ऐसा करके करके एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न को समझते हुए आपको करना है। और कई बार क्या होता है पैराग्राफ में वेग टर्म्स भी आते हैं, कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं तो जिनका कोई लेना देना नहीं पैराग्राफ से, ना क्वेश्चंस में, ना वो कुछ बहुत ज़्यादा सेंस चेंज कर रहे हैं उस पैराग्राफ का। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्किम कर सकते हैं कि भाई देख के छोड़ दिया, पूरा रीड करने नहीं बैठना है सेंटेंस को, ऊपर ऊपर से देख के एक आइडिया लगा लिया और उसको छोड़ दिया। फिर समराइज आखिरी में हमें करना है पैसेज को कि भाई ठीक है पूरा पढ़ लिया, एक कनेक्शन बैठा लिया सारे पैराग्राफ के, आपस का क्या कनेक्शन है इन सारे पैराग्राफ में। उसके बाद हमें एक समराइज थोड़ा मतलब शुरू शुरू में टाइम लगेगा इस चीज़ को कि हम बैठ के सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये 10-20 सेकंड का प्रोसेस होता है कि इसको दिमाग के अंदर ही हम सबकॉन्शियसली करना शुरू कर देते हैं अगर एक बार हमारी हैबिट बन जाती है तो, कि एक पूरा समराइज आइडिया उसको हम ले लेते हैं। तो ये सब रिकमेंडेड है। ये सब करके हम एक मतलब बढ़िया आइडिया लेते हैं। तो यही है। और उसके अलावा मैं आपको बता दिया कि ये सब रीडिंग के लिए तो मेन तो पॉइंट यही है कि एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है जब तक। अभी तो बहुत टाइम है क्लैट के लिए आपके पास, तो डेली आपको सोर्सेस लाइव लॉ बता देता हूँ। लाइव जैसे लीगल सेक्शन के लिए आपको रीडिंग करनी है तो लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, ये सब के आर्टिकल लीगल में काम आएंगे। दृष्टि आईएएस के आर्टिकल्स जो मैंने आपको अभी बताए यहाँ पे, वो सब आर्टिकल्स आपको, ये सब आर्टिकल्स जो हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ये सब लीगल सेक्शन में आ सकते हैं, इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन में आ सकते हैं, सीआर सेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो उठाएंगे। तो ये आपको मैं एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए सजेस्ट करता हूँ। तो खासकर आपको रीडिंग ही करनी है। अब तो फैज़ान मुस्तफ़ा ने भी बोल दिया है कि रीड अगर आपको क्लैट निकालना है तो श्योर शॉर्ट वे है, 100 बुक पढ़ लीजिए। बुक्स जितनी पढ़ पा रहे हैं उतनी पढ़ लीजिए। तो ये पॉइंट है। अब अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। Does anyone have any question? I've done. Hello, Yes. Yes, am Parampreet. I audible? Yeah, you are audible. Okay, so I wanted to ask, is it important to remember like each and every day Hello. that on which the event has happened Hello. extensively? Like it's not possible. So is it important to remember each and every date of that event? मतलब of which event, of what event we're talking about? Like the event that happened on day-to-day basis. Do we have to remember each and every event? Is there questions asked on Okay, dates specifically? okay. You're talking about the given dates or given names in an paragraph. Are you asking No, that? no, no, हाँ no. I meant to ask like in in general knowledge questions हाँ on the general knowledge topic. हाँ Will they will ask extensive dates on what this happened, on what this हाँ happened. हाँ या So देखो ऐसा कोई for इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, इफ देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट, लाइक जैसे कि ओलंपिक का डेट पूछ लिया या फिर पहला ओलंपिक किस तारीख को शुरू हुआ था। अब देखो क्योंकि इस साल का हम पैटर्न में देखा है ना, पहले तो फैजान मुस्तफ़ा ने बोला था कि यार ये सब हम डेट्स वेट्स नहीं पूछेंगे, मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार जैसा इन लोगों ने कर दिया, डेट पूछ ली, तो मेरे को लगता है अगले साल इस चीज़ के चांसेस कम होंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा उनको क्रिटिसिज्म हुआ है इस चीज़ के लिए कि अगर आप मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे हो तो डेट्स क्यों पूछ रहे हो। लेकिन अगर इसका क्रिटिसिज्म हुआ, अगर इससे इन लोगों ने कुछ सीख ली तो
शायद ही अगली बार डेट ना पूछे, लेकिन अपन अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहने के लिए पूरा रिकमेंडेड है कि जो भी करंट अफेयर्स में डेट्स हैं, डेट्स, नेम्स, एवरीथिंग, मतलब बेसिकली तुम्हें बेसिक आइडिया तो याद करना ही है इस न्यूज़ में, बेसिक हुआ क्या है, किस बारे में है। तो मतलब कुछ भी तुम न्यूज़ पढ़ते हो, मान लो अगर तुम करंट अफेयर्स तुमने टॉपिक न्यूज़पेपर से उठाया है और उसके ऊपर तुम मान लो दृष्टि आईएएस पे गए, उस टॉपिक का ऊपर पूरा एक्सटेंसिव तुमने पढ़ाई किया, तो उसके ऊपर तुम अपने मन में ही 5-10 क्वेश्चन का एक लिस्ट बना लो कि अगर इस टॉपिक में से कुछ आता है तो ये 10 क्वेश्चन प्रोबेबली आ सकते हैं। अब उसमें डेट्स भी हो सकती हैं, उसमें नेम्स भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो 10 क्वेश्चन का लिस्ट तुम अपने दिमाग से अपना सैंपल पेपर्स देख के जो भी मॉक्स हैं उसके हिसाब से एक आइडिया लगा के आ सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी रखो कि हाँ, मतलब बेसिकली डेट्स कर सकते हो मतलब। तो दैट वाज़ अ गुड क्वेश्चन। सो हाँ, डेट करना चाहिए। एनीबॉडी एल्स? Hello, boys. Bhaiya. You got the answer, Parampreet? Can I ask the next question? Yes, yes. Thank you for the answer. हाँ, It will. हाँ, उत्सव, you can ask. I just want to ask in reading comprehension, should I read the passage first, then solve the question? Or should I हाँ, first skim through the questions, then read the passage, and then start solving the passage? हाँ, देखो, आई वुड रिकमेंड कि पहले एक बार पैसेज पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा मतलब ऐसे नहीं पढ़ लो पैसेज, मतलब पहले एक बार क्वेश्चन एक बार स्किम कर लो कि बेसिकली क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जिससे क्या होगा ना कि पैसेज बाद में पढ़ना आसान हो जाएगा। मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में पहले बताऊं, मैं इस क्वेश्चन में मान लिया कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आ गए ना, कई बार बहुत ईजी हो जाता है कि भाई फैक्चुअल पैसेज दे देता है, क्लर्क एक आध दो देता ही है हर बार, तो जिसमें सिर्फ फैक्ट्स पूछे होते हैं, तो वो क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं तो रिकमेंड करूँगा साल ही क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, जिससे कि तुम्हारे को आइडिया हो कि तुम ढूंढ क्या रहे हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता है तुम ढूंढ क्या रहे हो, तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि क्वेश्चन मुझे पता है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब मुझे इसका आंसर ढूंढना है पैराग्राफ में, तो वो अप्रोच भी है। अब देखो, तुम ट्राई कर सकते हो, सब लोगों के लिए अलग अलग अप्रोच वर्क कर सकता है। तुम कुछ मॉक में एक्सटेंसिवली ट्राई करो कि मैं क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ता हूँ, और अगले मॉक में ट्राई करो कि मैं पैसेज पढ़ता हूँ और उसको उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो दोनों, तुम्हें दोनों में जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे वो कंपेयर करना, ज़्यादा करेक्ट एक्यूरेसी किस में आ रही है, उस हिसाब से तुम वो अप्रोच ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार मेरे हिसाब से, मतलब मैं पर्सनली जो करता था, मैं क्वेश्चन पढ़ता था और फिर उसके बाद मतलब एक बेसिकली देखता था क्वेश्चन को, स्किम करता था कि मतलब इट टेक्स हार्डली 20-25 और उसके बाद मैं पैसेज पढ़ना प्रेफर करता हूँ। सो दैट यू कैन डू। Okay, thank you. ओके, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? Okay, so I guess there is no more question. I and thanks a lot, Vaibhav, for your valuable time. The session was really wonderful. ओके, Thanks a lot. Excuse me. I wanted to ask a question. हाँ, हाँ,